क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राजेश went to a jewelry shop. He found a gold necklace appropriate as a gift for her wife on the eve of their marriage anniversary and paid rupees 5 lakhs for it. However, he found no hallmark sign on it. He kept the cash memo very safely in his locker at home. 2 months later, he found lack of purity in the gold necklace. Which responsibility as a consumer has not been fulfilled by Rajesh? सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने हॉलमार्क को उस पर साइन नहीं था, तब भी उसने खरीद लिया। तो जो ड्यूटी थी वो थी बाइंग स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। सही बात है ना। आपका जो हॉलमार्क साइन होता है वो उसकी प्योरिटी तो एक तरीके से स्टैंडर्ड दे देता है उसको। तो यहाँ पर ये ड्यूटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करी राजेश ने। कीर्ति bought a washing machine from an electrician who assembled components from different sources. The electrician is very talented and reliable. He is known for his skills and durable electronic goods. However, after 2 months of use, the washing machine stopped working. Kirti realized her mistake and felt what happened could have been avoided if she had fulfilled her responsibility. Which consumer responsibility was not fulfilled by Kirti in the above case? अब आप देखिए कि यहाँ पर एक टैलेंटेड इलेक्ट्रिशियन है, उसके पास स्किल्स हैं और उसने एक असेंबल करके एक वॉशिंग मशीन बना दी। लेकिन 2 महीने के बाद ही वो वॉशिंग मशीन ने काम करना बंद कर दिया। कीर्ति ने अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करी। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अगेन उन्होंने एक सेम प्रॉब्लम हुई बाय स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। ये उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरी नहीं करी। ठीक है ना? तो अगर आप किसी कंपनी का एक ऐसे अब एक आपने कस्टमाइज्ड टाइप की चीज़ खरीदी तो उसके लिए फिर क्या किया जा सकता है ना? तो ये एक चीज़ है। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बहुत सारे पैरामीटर्स पे इक्विपमेंट्स बनाती हैं, उनके पास कई सारे आईएसआई मार्क ये सारी चीज़ें होती हैं। कई स्टैंडर्ड्स सर्टिफाइड होते हैं, उससे सर्टिफाइड होती हैं वो, कुछ रीज़न होता है। तो स्टैंडर्ड गुड्स हमें खरीदने चाहिए। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9। Ravi runs a shoe shop. His business is running very well and is successful retailer. One day he orders 500 shoes to his wholesaler. The consignment reaches on time and payment is also done by Ravi the same day. However, within a week, he comes to know that 24 pairs of shoes have manufacturing errors. Quite a big number out of 500. तो ये एक बड़ा नंबर है। उसमें यानी कि 500 में से 24 पेयर्स में से 500 पेयर्स ऑफ शूज कर लेते हैं उसका। ठीक है ना? टू हिज होलसेलर। अब यहाँ भी पेयर्स हो गए। So 24 pairs of shoes have manufacturing errors. He complains regarding this to the wholesaler but gets no positive response. Which consumer court can Ravi approach? रवि यहाँ पर कौन से कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, रवि इज नॉट अ कंज्यूमर। बहुत स्टूडेंट्स इसको गलत करने वाले हैं, क्वेश्चन को आंसर इसका गलत देने वाले हैं। रवि इज नॉट अ कंज्यूमर, रवि इज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसका मतलब यहाँ पर ही कैन नॉट अप्रोच अ, ठीक है ना? तो रवि इज नॉट अ कंज्यूमर, so he can't approach any consumer court. किसी भी consumer court को he can't approach because Ravi is not a consumer, so he can't approach any consumer court. ठीक है? ये यहाँ पर अब क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। Sanjay purchased a new motorcycle of a well-known brand from the company's main branch. The price of the motorcycle was rupees 1 lakh. The motorcycle had a few defects due to which he contacted the company's grievance cell. However, he was not responded properly by the grievance cell. Even his complaint was not filed. He decided to approach the district court. However, he was not satisfied with the decision and decided to approach the state commission within 40 days from the date of order. तो अब ये पूछ रहे हैं कि कंज्यूमर राइट कौन सा यहाँ पे है जो वायलेट हुआ है। तो जो कंज्यूमर राइट वायलेट हुआ है, राइट टू बी हर्ड, है ना? क्योंकि उन्होंने कंप्लेन ही फाइल नहीं करी। यहाँ पे राइट टू बी हर्ड हमें सीधा वायलेट होता हुआ दिखाई देता है। राइट टू बी हर्ड, ठीक।
Is Sanjay correct in approaching state commission? Give reason. Yes, क्योंकि he is not satisfied. And अगर आप में से किसी को लगे कि यहाँ पे 30 days होना चाहिए था, तो जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें अपडेशन है 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। किसका? 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि ये 45 डेज होगा। जब आप डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कमीशन में जाते हो तो 45 डेज होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जब स्टेट से, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जब स्टेट से जब हम नेशनल में जाते हैं वहां पे 30 डेज होना चाहिए और उसके आगे फिर 30 डेज। ठीक है ना? तो ये आप देखो, यानी कि नेशनल से सुप्रीम कोर्ट जाना है फिर 30 डेज, लेकिन यहाँ पर 45 डेज अलाउ किए हुए हैं। तो यस, ही इज करेक्ट। ठीक है, एक दोनों तरीके से करेक्ट है। कंज्यूमर है, अप्रोच कर सकता है, और डिस्ट्रिक्ट फोरम में गया वो भी ठीक गया। 1 करोड़ रुपीज तक के केसेस डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। अब ये भी एक करेक्शन हुआ है डेडलाइंस में, तो जिनके पास नई एनसीईआरटी नहीं है वो अपडेट कर लें अपने आप को। ठीक है ना? डिस्ट्रिक्ट फोरम की लिमिट 1 CR है, स्टेट कमीशन की 10 CR हो गई, और 10 CR के ऊपर के केसेस नेशनल कमीशन में जाएंगे। तो वाइटल इन्फॉर्मेशन है, इसको लिख लें कहीं पे। ओके, इसको पूरा कर देते हैं स्टेटमेंट को। एज इट इज विद इन 45 days ऑफ, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर 45 डेज। तो ये गिव रीजन हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Ravi wants to purchase a press to iron his clothes. He approaches a nearby shop offering electrical equipments at fair prices. He buys a good quality press and provides his details to the customer support desk. He ensures that the press is of reliable brand, checks its warranty, reads manufacturer's instructions, ensures that all the features promised in the press are present, and also checks for ISI mark. In the above case, which consumer responsibility not highlighted should Rohit definitely follow? तो यहाँ पर एक कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हाईलाइट नहीं हुई है, सिंस इट इज नॉट बीन हाईलाइटेड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। और वो कौन सी है? टेक कैश मेमो, राइट। बाकी सारे इसमें दे रखे हैं, रिलायबल ब्रांड हो, वारंटी चेक करा, मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस पढ़े, ISI मार्क चेक करा, फीचर्स प्रॉमिस हैं तो डील भी इंश्योर करी भाई कि हाँ फेयर डील इज गेटिंग, मैन्युफैक्चर के इंस्ट्रक्शंस भी पढ़े, लेबल भी पढ़े, सब कुछ करा हो, मतलब लेकिन कैश मेमो नहीं है। लेबल तो खैर यहाँ नहीं है, हाँ रिलायबल ब्रांड तो लेबल देख कर ही पता लगा होगा, और फेयर डील भी इंश्योर कर ली, लेकिन मैं कैश मेमो यहाँ पे नहीं है। विच कंज्यूमर राइट्स ऑफ रोहित आर एक्सरसाइज इन द अबव केस? देखो, एक तो जब आप इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ते हो तो ऑब्वियसली राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हो जाता है, यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट। दूसरी चीज जो होती है वो होती है राइट टू सेफ्टी। आप प्रेस खरीद रहे हो, प्रेस के अंदर आपने चेक कर लिया ISI मार्क है, तो नहीं तो कुछ खतरा हो सकता है उसके अंदर, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है। सो राइट टू सेफ्टी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। रविंद्र orders cake from a famous cake shop of his city. The shop is known for delivering the cakes in a short span of time. The cakes of this shop are known for their good taste and quality. However, when he received the order, he found a dead insect inside the cake box. A report was filed by him in the grievance cell of the shop, and within 24 hours, the cake was replaced with a fresh one. Which consumer rights of Ravindra are exercised in the above case? ठीक है ना? तो यहाँ पर है राइट टू बी हर्ड, और उसके जो कंप्लेंट फाइल करी गई, और उसके बाद फिर राइट टू सीक्रेट रेसर, यानी कि उसके प्रोडक्ट को बदल दिया गया। दोनों चीजें हो गई, तो दोनों राइट्स यहाँ पर उसके फॉलो हो गए, एक्सरसाइज हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। श्रवण बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, ठीक है, उन्होंने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा फ्रॉम अ नियर बाय मॉल। हाउएवर व्हेन ही ट्राइड टू रीड द इंग्रेडिएंट्स ही फाउंड देम वेरी डिफिकल्ट टू बी रेड एज द प्रिंट वाज ब्लर्ड। When he complained about it to the company, the response was very positive. The company later withdrew all the blurry labeled biscuits from the market. Which consumer right of Shravan was violated in the initial part of the above case? कौन सा था? तो क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट टू बी
राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना, इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, वो था जो कि स्टार्टिंग में उनका वायलेट हो रहा था। और विच कंज्यूमर राइट डिड ही एक्सरसाइज इन द अबव केस, सारे ब्लरी लेबल्ड जो बिस्किट्स थे वो विड्रॉ कर लिए गए, तो यहाँ पर फिर हम देख सकते हैं राइट टू सीक रिट्रेसल, ठीक है ना, ये दो चीजें यहाँ ये हो गया वायलेट हुआ पहले और ये फॉलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एनजीओ हैज डिसाइडेड टू पब्लिश अ मैगजीन नेम्ड अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर पैरामाउंट। The magazine will help some of the very important initiatives to be implemented as it will create awareness among the masses. अब ये क्या कर रही है, ये कंज्यूमर से रिलेटेड राइट्स, रिलीफ्स, रेमेडीज ये सब बताएगी, है ना, केसेस बताएगी। तो यहाँ पर ये जो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन होता है। कंज्यूमर एजुकेशन क्या है कि कंज्यूमर को उसके राइट्स पता लगे, उसको क्या क्या रिलीफ्स मिल सकती हैं वो पता लगे, कुछ उसको प्रैक्टिकल केसेस के बारे में पता लगे, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए और उसको अपने राइट्स का पता लगे और साथ में उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी पता लगे। क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करते हैं, तो अगर हमारे राइट्स वायलेट होते हैं, तो वो भी हम उसके लिए कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं अब। Sanjeev purchases a car for rupees 45 lakhs. The brand is well known and is suggested by the experts to be providing value to the buyers. However, he is unfortunate as after a few days, he notices some major defects in the engine of the car. He reports about the case in the district forum and is provided the necessary remedies. Suggest 4 remedies which Sanjeev can get. अब संजीव जी यहाँ पर कौन कौन से इनको जो है रेमेडीज मिल सकते हैं वो जरा हम देखते हैं। एक तो इंजन में जो भी डिफेक्ट है वो हटा दो, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है, डिफेक्ट्स ये हो गया, ओके। एक अगर हम देखें तो इंजन को रिप्लेस कर दो, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन, ठीक है। और हम इसके अंदर क्या देख सकते हैं भाई, उनको उनका पैसा लौटा दो, तो ये हो गया रीफंडिंग। और हम क्या देख सकते हैं जी, कॉम कॉम्पेंसेशन, ठीक है, ये 4 हम देख सकते हैं रेमेडीज हैं जो इसको मिल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16 which is the last question of this chapter. Ashish purchased an ISI mark electric iron. It is product of a well-known brand. Before making the purchase, he did comparative analysis of all the famous brands. He carefully kept the cash memo. His brother had told him to ask his electrician to assemble an electric iron as per his personal requirements. However, Ashish informed him, उन्होंने उनको क्या दिया भाई, उन्होंने भाई ने क्या बोला, ये करवा लो किसी से ना, ऐसे असेंबल करा लो। आशीष ने कहा that he is going to bring the electric iron of a well-known brand. After making the purchase, he kept the cash memo properly. He even ensured that he made a deal providing proper satisfaction. So, which responsibilities as a consumer are being fulfilled by Ashish in the above case? तो एक तो इन्होंने, आप देखोगे, कैश मेमो लिया, ठीक है ना, कैश मेमो ले लिया, डील प्रोवाइडिंग प्रॉपर सेटिस्फैक्शन, कैश मेमो ले लिया। फिर इन्होंने क्या करा, एंश्योरिंग फेयर डील, ठीक है ना, फेयर डील एंश्योर करा, एंश्योरिंग फेयर, तो डील भी फेयर एंश्योर करना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाद में आप परेशान हो उससे पहले आप पहले ही थोड़ा सा उसके बारे में मालूम करो और बायर सेलर से कुछ डिस्कशंस करो, ताकि आपको पता लगे जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो ठीक खरीद रहे हो। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने पूरी करी, आप जो आप सेकंड लाइन में देखो, ही डिड कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑल द फेमस ब्रांड्स, बीइंग अवेयर ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बीइंग अवेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये भी एक चीज है। मार्केट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो आपने उसको आपने चेक करा इन द मार्केट। और ये हम एक और देख सकते हैं, उसने मना कर दिया कि भाई मैं उसके हाथ से नहीं कराऊंगा, मैं तो स्टैंडर्डाइज गुड्स, यहाँ भी उसने एक, ये 4 उसने ड्यूटीज जो हैं पूरी करी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करी हैं। अब हम देखते हैं कि भाई कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से यहाँ पर एक्सरसाइज उसके हुए हैं।
तो एक तो ISI लेने की वजह से, मार्क लेने की वजह से राइट टू सेफ्टी एक्सरसाइज हुआ है, और क्या हुआ है, राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी कि उसने ये इंश्योर किया कि जो वो पूरा इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की केस स्टडीज फिनिश हो गई हैं, और इसके साथ हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ हमारी बुक भी खत्म हो गई है, हमारा टर्म 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आई होप ये 125 क्वेश्चंस आपको सपोर्ट देंगे, हेल्प करेंगे। मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन में पूरी कोशिश करी, कोई गलती ना हो, फिर भी एक आध कोई हो सकती है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, बट थोड़ा पढ़ने के बाद करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी जल्दी कमेंट कर देते हैं। थोड़ा सा देखने के बाद हम करें तो इट्स बेटर, ताकि सबको फायदा हो। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।